الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome Mr. Amir Habib Sahab, Honorable Secretary Punjab Assembly, who has guided and helped me a lot in formulating this ever first parliamentary caucus for children with different abilities. Respected parliamentarians of this caucus, Ms. Jahan Ara Wattu, Vice Chairperson, Punjab Social Protection Authority, Representative Special Education Department, Health Department, PDU department officials and all the participants of today's meeting, I welcome you all for taking part in this very important caucus. Before we start the proceedings of today's meeting, I would like to pay my heartfelt appreciation and gratitude to the Honorable Speaker Punjab Assembly, Malik Muhammad Ahmed Khan Sahab, who has always been kind to consider this for formulating for this caucus. He's also the patron-in-chief of this very important caucus, for which we all are highly grateful. And I would also like to I'm also very grateful to my parliamentary party leader, Chaudhry Shafi Hussain Sahab, who encouraged me in my efforts for this noble cause. If you could start the introduction, Ms. Jahan Ara Wattu. Jahan Ara Manzoor Wattu. I'm Vice Chairperson, Punjab Social Protection Authority. This is Junaid Amjad, Director Programs, Punjab Social Protection Authority. Zunair Maqsood, Section Officer at Specialized Healthcare and Medical Education Department. Dr. Usman, Deputy Secretary Technical Specialized Healthcare and Medical Education. Assalamu alaikum. I am On Bukhari, Special Secretary Health and Population. It's an honor and pleasure to be here. Thank you. Assalamu alaikum. I am Ehtisham, Health Officer from Health and Population Department. Assalamu alaikum ji. Ghulam Murtaza, Director Admin Special Education Department. Ji, assalamu alaikum. I am Dr. Khala Munawwar Minhas and I am from Special Education Department. Thank you. Assalamu alaikum. Farhat Ehsan, Deputy Director Youth Affairs Department. Madam, Assalamu alaikum. Asfa Khan, Director PDU. Assalamu alaikum ji. Turetulain Ehsan, Director PDU. Assalamu alaikum. Ataullah Wais, Director PDU. Tanveer Ahmed, Reporter, Punjab Assembly. Mohammad Azan Nasir, Content Producers, Punjab Assembly. Assalamu alaikum. I'm Major Ranjam Afroz Rana, President Pakistan Down Syndrome Association. Assalamu alaikum, Dr. Shumaila. I am Board Certified Associate Behavior Analyst. I'm International Behavior Analyst, and I am the Professional Advisory Board member of International Behavior Analyst Organization, USA and Pakistan, and I am CEO of Trusted Support Therapeutic Clinic and CEO of Inclusive Vision Early Learning Center, and it's a great pleasure to be here. Thank you. Thank you, Shumaila. Ahmed Lagari, Member, Punjab Assembly, PP 291, DG Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rushta Lodi, Member Punjab Assembly, Member Punjab Bar Council, elected Member Punjab Bar Council, and I am the only lady who is elected all over the Pakistan and member of any provincial bar council. Nowadays I am working as a Parliamentary Secretary, Specialized Health and Medical Education. Thank you. जी आसिफा, अगर हम आज की एजेंडा पॉइंट्स एंड ब्रीफिंग, अगर हमें डिपार्टमेंट पहले अगर अपनी ब्रीफिंग स्टार्ट कर दें, वी स्टार्ट फ्रॉम
the Education, Special Education Department. With the permission of the chair, can I say something, madam? Ji, sir, sorry. What about the minutes of, have we changed the name of the caucus? Has it been changed? PDU? Yeah. Yes, it has been changed. So all these minutes have been approved from the previous meeting? Yes, it has been. Yes. All of them? Ji. So now, so you have to first, now the name of the caucus is Children with Disabilities. Children with different abilities. Different abilities. All right. Ji. Miss Sania Ashik has to be here for his briefing, but we are waiting for them. A briefing by Vice Chairperson, Punjab Social Welfare Authority, Ms. Jahara Bhattu. I would request she start, please, briefing on this. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairperson of the caucus, Salma Saeed Sahiba, Honorable Amir Habib Sahab, Secretary Punjab Assembly, members of Punjab Assembly and all the respectable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. आज यहाँ पर मैं पहले तो सलमा साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। हमारी अथॉरिटी जो है ये 2015 में बनाई गई और पंजाब हुकूमत का ये ऑटोनमस बॉडी है जो कि गरीब से गरीब तर जो अफराद हैं पंजाब में उनकी मदद करने के लिए हुकूमत पंजाब के जो प्रोग्राम्स हैं उनको पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चला रही है। उसमें चूँकि हमारा मैंडेट है कि जो डेटा कलेक्शन है वो भी और उसके अलावा जितने भी सोशल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स हुकूमत पंजाब लेती है उसमें या उनको हमारी अथॉरिटी चलाती है या उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करती है। जिस तरह के यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनके यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, तो उनके भी इल्म में होगा कि काफ़ी करीबी तौर पर वो हमारी अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। चूँकि आज की ये ब्रीफिंग जो है ये डिफरेंटली एबल बच्चों के हवाले से है ख़ास तौर पर, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारा पहला तारुफ़ है और अथॉरिटी को तो बेशतर मेंबरान जो हैं वो तो काम वर्किंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि चला रहे हैं हम। ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब का तालीम के हवाले से ज़ेवर तालीम प्रोग्राम है जो कि बच्चियों की एजुकेशन के लिए है। इसमें क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक जो बच्चियां सरकारी स्कूलों में रजिस्टर होती हैं वो 16 अज़ला ऐसे हैं जिनमें कि ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें शर्त सिर्फ ये होती है कि वो PMT स्कोर जो कि गुरबत का स्कोर आप लोग जानते हैं उसमें फॉल करते हों, सरकारी स्कूल में जा रही हों और उनकी 80% हाज़िरी हो और उनको हर महीने पैसे दिए जाते हैं। तो उसमें भी मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगी कि चूँकि उसमें कोई ये तरजीह नहीं दी जाती कि वो बच्चियाँ जो हैं उनकी फ़िज़िकल हालत कैसी है, तो उसमें भी जो डिसेबल बच्चियाँ हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। तो जो डिसेबल बच्चियाँ हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में उसमें रजिस्टर होती हैं और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सेहत के हवाले से माँ और बच्चे की सेहत को ख़ास तौर पे फोकस करके आगोश प्रोग्राम है जो कि 12 अज़ला में चल रहा है। बुनियाद प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चों के अर्ली वहाँ पर जो हमारे 12 अज़ला हैं ये ज़्यादातर साउथ पंजाब के हैं, उनमें सेंटर्स बनाए जाते हैं, क्लासरूम्स बनाए जाते हैं अर्ली एजुकेशन के। तो बच्चे उनमें जो है गरीब वालिदैन जो हैं सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों को जल्द वहाँ भेज सकते हैं ताकि वो गलियों में घूमते नहीं रहें। उसके अलावा फिर वहाँ पर एसेट्स दिए जाते हैं, ख़ुद मुख्तार प्रोग्राम है हमारा। ये 3 जो प्रोग्राम्स हैं ये वर्ल्ड बैंक फंडेड हैं जो कि साउथ पंजाब में चल रहे हैं। ख़ुद मुख्तार प्रोग्राम में एसेट्स दिए जाते हैं, ये 1.5 लाख तक का एसेट है जो कि दिया जाता है। इसके अलावा फिर हमारे 2 बड़े यूनिक प्रोग्राम हैं, एक मुसावात है जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए है और फिर उसके अलावा एक नई ज़िंदगी है जो कि
एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए है, बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम है जो कि बुज़ुर्गों के लिए है, और यहाँ पर जिस प्रोग्राम का ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी वो हम कदम प्रोग्राम है। हम कदम जो कि डिसेबल अफराद के लिए प्रोग्राम है। इसमें हमने 2015 और 16 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और हम कदम प्रोग्राम के तहत 90,000 अफराद को स्टाइपेंड दिया गया 5 साल तक। उसके बाद 2017 से 18 में उसी प्रोग्राम में से जो रूरल ख़वातीन हैं, जो देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनको चुना गया। ये 2000 ख़वातीन थी, उनको चुना गया जो कि गुर्बत के स्कोर के ज़ुमरे में आती हैं, और उनको एसेट दिए गए ताकि वो जो पैसे सिर्फ ले रहे हैं वो उसी जिसको हम कहते हैं कि उनको हम एक भीख की आदत, बार बार कहा जाता है कि जब आप पैसे देते हैं तो उनको आप भीख की आदत डाल देते हैं, तो उसको उस आदत से निकालने के लिए और वो किसी काम की तरफ तवज्जो दें, उनको ये एसेट दिए गए, जिसमें ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे कि देहाती इलाकों में लोग जो है वो लाइव स्टॉक की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, तो उनको ये लाइव स्टॉक के एसेट दिए गए। उसके अलावा इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम है डिसेबल के लिए जो चल रहा है वो इनकम जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा प्रोग्राम अखुवत वालों के साथ चल रहा है। इसमें अभी तक 35,000 अफराद जो हैं वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। डिसेबल अफराद जिनको कर्ज़े दिए जाते हैं, कर्ज़ा जो है वो 20,000 से शुरू होता है और उसके बाद किस्त दर किस्त ये कर्ज़ा जो है वो 1 लाख तक उनको दिया जाता है और 18 माह के अंदर ये कर्ज़ उन्होंने लौटाना होता है। और इसमें चूँकि अखुवत जो है उनके साथ लाइज़ोन किया गया है, तो वो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी करीब से देखते हैं PSPA के साथ, और इसमें जो है वो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिला है। उसके अलावा हम कदम प्रोग्राम में इस वक्त हमारे पास जो डिसेबल का प्रोग्राम है जो कि पूरे पूरे पंजाब में चल रहा है, उसमें अभी हमारे पास तकरीबन 6,000 लोग रजिस्टर्ड हैं जिनको 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं माहाना। तो ये पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसमें मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है इसमें काम करते हुए एज अ वाइस चेयरपर्सन के। मेरी हुकूमत आने से इलेक्शन से पहले अक्टूबर में मेरी यहाँ पर तकर्री हुई और मैंने इसके काम को बहुत करीब से देखा। ये काम जो है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इंतहाई ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि ये काम बहुत ही गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1,000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा या 2,000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको 1,000 और 2,000 रुपये से फ़र्क पड़ता है। और ये मैंने ख़ुद, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ मेरा रूरल बैकग्राउंड है और ग्रास रूट से हमने देखा है कि वहाँ के क्या मसाइल हैं, तो जब मैं यहाँ पर मैंने ये सारा प्रोग्राम्स देखे और मैंने जब ब्रीफिंग्स ली तो मेरे इल्म में आया कि इतना बड़ा काम हो रहा है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, तो इनको ग्राउंड पर जाकर देखना चाहिए क्या वाकई ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने ख़ुद जो है वो 26 डिस्ट्रिक्ट्स के विज़िट किए हैं पिछले साल में, और वहाँ पर जाकर मैंने इन लोगों से मुलाकातें की हैं जो हमारे हम कदम प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं, उनसे भी मुलाकातें की हैं। हमारे ज़ेवर तालीम से जो हमारी बेटियां जो बच्चियां पैसे ले रही हैं उनसे, उसके अलावा आगोश प्रोग्राम सबको जाकर देखा है। और फिर ख़ास तौर पर इसमें मैंने जो लोकल गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनसे मुलाकातें की, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक लोकल गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप नहीं लेगी और उसको वहाँ पर वो नहीं मॉनिटर करेंगे। तो उनसे मेरा मुलाकात का ग्रीन टी दे दीजिए, उनसे मेरे मुलाकात का मकसद यही था। और डेफिनेटली हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा मकसद जो है वो आवाम की भलाई का है, इसलिए सिर्फ
अच्छी बात जो है वो नहीं, हम सब जानते हैं कि जहाँ पर हम ये सब प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं लोगों की मदद करने की, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी दरपेश होते हैं। उन मसाइल में कैश ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं तो उनमें क्या वो शफाफियत से हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो बैंक्स का होता है और कैश एजेंट्स का होता है। कैश एजेंट्स जो हैं उन पर बहुत चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो इन सारे मामलात को करीब से देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, एज़ अ वीसी के भी मेरी ये कोशिश है कि इनको अवाम का जो पैसा है ये उनकी अमानत है और इसको शफाफियत से और जल्द अज जल्द उन तक पहुंचना चाहिए। और आज यहाँ पर मैं सलमा साहिबा जो हैं ये बहुत ही पैशनेट हैं इस कॉज को लेकर। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग जो हैं वो पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर। तो आज जब इन्होंने मुझे दावत दी तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी और यहाँ पर ख़ुद हमारी जो अथॉरिटी काम कर रही है उसके बारे में बताऊँगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ शेयर करना कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इल्म में कुछ आपका काम नहीं होगा, आपके इल्म में कुछ हमारा काम नहीं होगा, तो मिल बैठना भी बहुत अहम होता है। तो हम लोग जो हैं, हमारी अथॉरिटी जो है वो हर तरह से आपके साथ ताउन करने में, आपकी मदद करने में, आपको असिस्ट करने में इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। और जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत होगी डिसेबल बच्चों के लिए और इस कॉकस के लिए, तो चूँकि हुकूमत पंजाब का और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का ये विज़न है कि हमने सबको बराबर लेकर चलना है और कदम से कदम साथ में लाकर चलना है, तो इंशाल्लाह इसमें हम आपकी मावनत करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विद द परमिशन ऑफ द चेयर जी अलाउ मी जुनैद जी मिस बिट्टू, अभी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपका जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं उसमें ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपका हम कदम प्रोग्राम है जिसमें आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशल पर्सनस के लिए, तो जो हमारे बच्चे हैं चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हम उसमें एक कैटेगरी ऐसी कर दें जिसमें ऐसी ही सपोर्ट उन चिल्ड्रन को हम दें जो विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हमारे साथ सरवाइव कर रहे हैं। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम साथियों से, तमाम मेंबर से, कि अभी जब हम बात करें तो चूँकि हमने इस कॉकस का नाम चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ कर दिया है, तो हम उसको इसी नाम से पुकारें। थैंक यू जी, ज़रूर, इसमें ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। हमारा जो हम कदम प्रोग्राम है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट्स जब चेंज होती हैं मुख्तलिफ, उसमें फिर काम जो हैं वर्किंग उनमें भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। अभी हमारा जो प्रोग्राम है इसमें कई चीज़ें हैं जो कि तब्दील होनी हैं। उसमें हमने यहीं से पंजाब असम्बली से ही नॉमिनेशंस मांगे थे अपने बोर्ड के मेंबरान के लिए, क्योंकि हमारा बोर्ड मुकम्मल नहीं था। सो सिंस गवर्नमेंट आई है तो मैंने दरख्वास्त की कि आप हमारे बोर्ड के मेंबरान, क्योंकि जो असम्बली के मेंबर्स हैं वो आम लोगों के मसाइल से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका किसी भी बोर्ड पर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये कि वो निशानदेही कर सकते हैं असल मसाइल की, दूसरी चीज़ ये है कि चेक एंड बैलेंस हो जाता है। तो उस पर मैं स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अभी अभी कुछ नॉमिनेशंस हमें दी हैं। और अब ये है कि जो हमारे प्रोग्राम्स जिनमें तब्दीली ना होने की वजह से वो हमने रोक रखे थे, उनको हम बेहतर नहीं कर पा रहे, इसी किस्म की कई हमारे पास सजेशंस आती हैं। कई सजेशंस जब से मैं आई हूँ इस ऑफ़िस में मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन एक अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरी मदद करें और आपकी तरफ से सजेशंस आएँ, और इंशाल्लाह हम उनको जैसे आप चाहेंगे, जो बेहतर होगा आम लोगों के लिए, जो बेहतर होगा उसको हम करेंगे। थैंक यू मिस जहारा। अब अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ हेयर, जी वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, डॉक्टर खौला साहिबा जी from special education. I'm sorry. Thank you very much, Madam Chairman, and it's an honor to present before this august House
such a noble cause and one of a kind, first of its type. You deserve all the felicitations for that, ma'am. And already we are working in collaboration with Special Education Department, and we have held and Specialized Health Department. Both of them are over here. And we have already got screened around 4 times, around starting from 2017 onwards, and provided treatment at their facilities most of the time. And this time around, we are again working on it. I am convening the technical working group on it, whereby we're going to provide all those special education identified ailments which the kids have in different level of hospitals, like at primary care, secondary care, and then over to the tertiary care level. So we are in the middle of that, and if you guys would like to have a look at it, I have already drafted some recommendations. You may share the soft copy with ma'am. Please, that would be helpful. Ma'am. And otherwise, I'm pro bono available to assist this caucus anytime, 24/7. It's a kind of passion with me. Thank you, sir. Thank you. So briefly speaking, the agenda contained the counters. Of course, there should be counters, there should be facilitations. We are all for it. Of course, we'll need some more resources and some more recruitments maybe, like from PPSC, like clinical psychologists. We have 40 sanctioned seats, and there are around 20 vacant at the moment. 20 vacant? 20 vacant at the moment. Achha ji, theek hai. So we can write to PPSC for that matter. Requisition, we do that every year. This year we have done that too. Likewise, there would be other resources needed, like allied health staff and certain social mobilizers maybe. And we are even considering that we should reach out to the disabled or differently abled or special needs person, because it's not easy to transport them to hospital. It's not easy even for the neurotypical to come to the hospital, for anyone. And they have different needs and they have sensory issues. Over there, we might try to get a waiting area for them and some social mobilizer for them who can assist them and keep them calm meanwhile. And may offer some counseling, and wherever, either in specialized health or in health and population, we have some facility available where there's psychiatrist ward or psychologist available, we should spare that area for that waiting line. And at another level, we are trying to make a referral system with the specialized health so that we know all the kids who are registered over here in our system, and we can refer them for and get time and appointment from them. It's a kind of, as Madam Jahara rightly pointed out, that we are doing something at our own level in silos kind of, so we can kind of join and collaborate and synergize for that matter. That might include already in this one, we have suggested kind of collaboration with specialized and special education. But I'd suggest if SPA wants to join in, if social welfare wants to join it, we have already made a dashboard for it, wherein we have populated around 38,000 plus kids with different ailments. So here's a brief of the combined effort that we are making. We have been making, like from 2018 onwards, different screenings of the special children. I hope my special education colleagues are on the same page with me. Yeah, I'm trying to kind of represent them as well. Acha ji, okay, theek. So this is the screenings that we have been having from 2018 onwards, but it was more of a temporary thing that our team will go to their institutions, provide them with the medication, treat them at the spot, and then leave the place with the record. Achha. But not many of these kids need all the short-term treatments. They need therapies. It's an ongoing thing and challenge, which needs constant resource. It does. And the ratio as well, please next. I believe that. Just move it, just I'll walk you through. This is the special education infrastructure wherein they have in 30 districts 303 schools, and enrollment count is around 39,000. Total screen till date is 38,000 plus, and it's around 98%. So next. ये है स्क्रीनिंग टीम की कंपोजिशन, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, आर्डियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, 1 DO, data entry operator. We had given them a tab to keep the data digitized so that this house and other august forums like this can make informed evidence-based decisions. Okay. Next. This was the kind of mobile camp we moved into their place for dentistry treatment.
So these are the 6 common ailments that are in most special children across Punjab: ENT related, speech and cognitive, dental issues, psychological, blurred vision, skin problems. Next. And this is different percentage of the screened children with different ailments. Keep moving, please. Next. 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 We can stop anywhere if you want me to and discuss if there's any question about it. These are actual numbers, sir. So these are the devices that have been recommended. Previous one, please. Yeah. 21,215 devices chair recommend की गई थी, और there can be many more. The special education is collaborating with UNICEF and जी बिल्कुल. How did you geographically divide them? Is it all over Punjab or? It is all over Punjab in different institutions. Focus was of course on Lahore, major activity because to the availability of facilities over here. Otherwise it's all across Punjab. Next. पिछली वाली please दोबारा. Last one. ये the referral system I was talking about कि हम करेंगे connect इनके साथ भी, special health के साथ भी. अच्छा जी, ठीक है. ताकि जिन बच्चों का प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे नहीं है ट्रीटमेंट, दे हैव टू बी ट्रीटेड एट सम टीचिंग और टर्शियरी केयर लेवल हॉस्पिटल सो दैट वी कैन गेट टाइम और अपॉइंटमेंट फॉर देम. Okay. So can you show us the recommendations? The technical working group. There was a slide where you showed all the districts. Sir, go back to that slide please, ma'am. कहाँ लिखा है? It's with the map, ma'am. This one. These are the number of, it's 97% was in Lahore. I'm sorry. यहाँ sorry, मुझे यहाँ से भी This is कुछ the नजर नहीं आ green रहा is the total screened and the red is the one that has been left, less than that. Attak and Itsham क्या है वहाँ पे? Hafzabad, Hafzabad. This is due to lack of staff and teams and students available. Itsham आपके पास हैं recommendations? More or less what we are doing at the moment, I have submitted, and we are more than open to any other directions this August House gives us. Or even suggestions. Yeah, of course, of course. ठीक है जी, ठीक है, thank you, thank you. I hope my colleagues on the specialized would agree. I just have one question. Like Sure, ma'am. this is all what they are doing with special education department अच्छा जी. for those students who are enrolled in our institutions. जी. So is there any such activity or initiative for those who are not enrolled in schools and they are out of school, and how they will or they can approach them, access them through this initiative? जी. These are different treatment plans that have been अच्छा. designed by our technical working group. But right now I'd like you to go to the recommendation part. These. These are zoom करेंगे. बाकी लोग देख सकते हैं. जी जी. Should I recite them one by one, or would you like to go through and then we can discuss? How would the chair like it to be? I think ये थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं सकती हूँ कुछ. तो starting from all the CEOs हम उन्हें डायरेक्शन देंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रीटमेंट टीम्स जो है वो उसकी कंपोजिशन जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको नोटिफाई करवा देंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कि दिस इज गोना बी द टीम दैट इज गोना गो एंड ट्रीट दीज किड्स एट देयर इंस्टीट्यूशंस प्रेफरेबली. अच्छा. Next is कि we will try to maximum facilitate them by taking our equipment over there, whichever is logistically possible.
so that they don't have to come to the hospital because it's already congested and there's not very conducive environment for different needs. So we'll try to move as much as possible equipment over to the place where the kids are, be it the outreach, which is at a next level maybe. This is just a recommendation. I don't know how it's going to be affirmed or not. But as far as the special education institutions are concerned, we'll try to take our equipment over there so that the children don't have to be moved. And thirdly, we'll try to provide them with the multi-mineral sachets and different nutritional food that is available with the IRM and CH. And then our EMR system can incorporate unique labeling, tagging of color coding for individuals with different needs, so that they can be flagged and can be treated differently. Just like we have a counter for different elderly people or ladies. अच्छा ठीक है. Like we can have a counter for as suggested in the agenda as well. जी जी. Please scroll down a bit. So we have a designation of school health nutrition supervisors. They'll be assigned to visit all these schools. They're already doing it, but not in that spirit. They go to all schools, the regular schools and the all special. schools, sorry, जो all schools आप कहते हैं, are you just specifying only Lahore or you're all across Punjab? Punjab. All across Punjab. All Punjab. ठीक है, ठीक है. So now they'll be more focusing on these differently abled people and differently abled needs kids. And special education department, we are requesting them to keep their monitoring at district level of all these KPIs and SOPs. And DDHOs from our side will be monitoring officers as well. And our school health and nutrition supervisors will be our boots on the ground. And then we have requested for a committee comprising of special education, specialized health, ourselves, so that we can monthly meet and review the progress of the treatment plans and their further suggestions and recommendations. And almost everybody it's not a news, there's a huge shortage of specialists. So we need to have to search out for from the private sector too. We can collaborate with the private sector as well for training sessions. Yes. Like many therapies, ma'am would probably bail me out on this, that we are kind of so deficient in HR. Our institutions are so overloaded. We need to enlist more. We have to have more trained personnel over here who can deal with all these. Like for instance, we have quoted that in special education there are 180 vacancies of speech therapists, and there are 22K plus special needs children who have these SLT needs. Some have GLP needs. And over here we have only ABA therapy and to a certain extent PECs. And I don't think many of them are trained in teach as well. There are quite a number of, and we don't even have that. Yeah, I think how this is on the agenda also. This is what we wanted to ask, if you can elaborate on that. Yeah, ma'am. It's one of the significant. Please scroll down a bit. So there are free courses available that have been identified. I have myself done a couple of courses, like from international institutions, WHO level, Kent University, the course that I did. And then there is, last but not least, the Special Olympics, since sports department is with us too. We have an NGO with the Special Olympics, and they have been getting more medals than our regular teams. And they need all the support they can get. And our kids need all the help in this kind of, they not only need therapies, they need some preoccupation, physical proper activity, along with the vocational activity. We have schools for school-going age children. Other than that, we have very few vocational institutes where we can teach them. And we have a lot for the physically disabled, but we don't have much for the mentally differentiated learning needs. I have so much to share, but I don't know whether the caucus have that kind of time, but I'd like to respond to any questions you have. And for children who are registered in these schools, and I understand that the screening process is part of identifying those children. So, एक recommendation की मैंने सुना कि जिसका
discussed yesterday with her, which was about placing a desk in hospitals. वो I understand your understanding of it is a very comprehensive plan, जिसमें एक space हो, एक expert हो. But इस level पे कुछ इस तरह का नहीं हो सकता जिसपे you just have a basic priority desk with hospital staff in government hospitals. Sure, that's even easier. Even easier, you know, just that Low hanging fruit kind of हाँ, thing. low hanging fruit है ना, उसमें आप identify करें वो बच्चा and you just take him sort of cutting the line वाली जो चीज़ है. Where the wait system नहीं है, waiting time आपके पास कम हो, मतलब मुझे ये है कि these are very comprehensive plans, but I think with the caucus what we can try and collaborate on कि अगर कोई immediate outcomes हम identify करके निकाल सकते हैं तो वो हम करें, और जो आपने हाफजाबाद identify की है we can find the relevant MPA, we can talk to them, और आपको जो भी वहाँ पे मसले आ रहे हैं उनकी screening के अंदर वो we can resolve those. Yeah, we can collaborate on it. Can be done, and it's easier for us to just establish a counter, but we'd like it to be more extendable. More extensive. No, I understand. जी No, I haven't forwarded to anyone. It's just a draft for now. I haven't even submitted it to the competent authority. It is still Just for our ongoing. I'm knowledge. trying to add on things into it. And one of the objective of presenting it over here was to seek guidance and support from this caucus as well. It is equally applicable. For that, I would like you to refine it further. It's just a draft ठीक for है now. जी, आप टाइम ले सकते हैं, मैं आपसे इन टच रहूँगी इस बारे में, and then we can take it from there. Sure, ma'am. It's a ठीक है pleasure. ना, सही है. मिस शुमाइला, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट दैट डेस्क. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. सेपरेट डेस्क का मतलब ये नहीं है कि कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, बट सेपरेट डेस्क ये कि उनको लॉन्ग वेटिंग. और दूसरी चीज़, थोड़ा सा उनको ट्रेंड होना चाहिए हाउ टू हैंडल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन. हमारे बच्चे जब हॉस्पिटल में जाते हैं उनको एलियंस की तरह ट्रीट किया जाता है. बिलीव मी, उनको देख के डर रहे होते हैं. दे रिफ्यूज़ टू ट्रीट देम कि वो थोड़े से एग्रेसिव हैं या वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं. अभी आप देखें, एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने पूरे के पूरे स्टाफ को इंटरनेशनल ABA की सर्टिफिकेशंस दिलाई है कि अगर आपके पास ऑटिस्टिक बच्चे फ़्लाइट में हैं तो हाउ टू हैंडल देम. ये इसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं कि हमें अपना जो पैरामेडिकल स्टाफ है एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑटिज़म के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, मेंटल चैलेंजेस के बारे में हम उनको अगर दे दें तो दैट वुड बी ग्रेट. Couldn't agree more, ma'am. This makes eminent sense. We need to train them. On my part, I've been trying to even distribute brochures, leaflets. I move along with my kid. He has different needs. He's autistic. And wherever I go, people point out things like that. They're treated like aliens. They're out of this world. Either they consider us that we are not doing the right parenting. They point there. So I have a kind of, in Urdu and English, मैंने खुद से design किया था with the help from the specialists like you. So I used to distribute that in the markets wherever people were looking with like kind of. You have to develop a very thick skin if you are a parent of a different child, differently abled child. So very right, they need trainings. I have identified that too. They need to be sensitized. Training of those who are going to treat them, because taking a kid with different needs to the dentist chair, this is a challenge, huge challenge. I've not been able to do that. Even this suggests general anesthesia. Sir, इसमें excuse me, sir, if you have agenda with you, so we have point B under your department. The government and private laboratories should offer genetic counseling and diagnostic facilities free of cost. और दूसरे एक इसमें जो है issuance of disability certificates to the children with differently able. तो इन पे अगर आप कुछ हमें brief कर सकें कि इनका क्या. Actually, this agenda has been not earlier shared, so I was not able to look into it, but it all makes sense. It's fair enough. We'll follow it up and try to implement it. Okay. Makes sense. Also, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए एक डेडिकेटेड जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है. डेट रिजाइड्स इन FGMU, डेट इज़ फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी, और डेट टिपिकली डील्स विद दीज जेनेटिक डिजीजेज एंड द टेस्टिंग. और वहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं. और अभी रिसेंटली आपके में होगा, कल हमने बिल भी पास करवाया है पार्लियामेंट से, डेट इज़ ऑन थैलेसीमिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो उसके बाद भी इंशाल्लाह इसमें स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इसमें प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ का है तो उसको हमें देखना पड़ेगा. जहाँ तक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे तो हम मतलब लेवरेज ले सकते हैं, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है
डेट इज़ सर तो जेनेटिक काउंट मतलब मकसद इस ब्रीफिंग का यही है बिकॉज मेंबर्स को भी और असेंबली इटसेल्फ हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो द आइडिया ऑफ अ ब्रीफिंग इज़ कि आप हमें बता दें क्या हो रहा है। तो अभी फिलहाल फातिमा जना में ही है या उसके अलावा भी कहीं? उसमें डेडिकेटेड है, बाकी जगहों पे है, लेकिन वो लिमिटेड सेक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पे वो डेडिकेटेड सेगमेंट जो है वो अवेलेबल है इन तमाम डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए, एंड इट्स द ओनली वन इन पाकिस्तान दैट इज डूइंग दीज टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टेस्ट फॉर दीज पेशेंट्स। और जहाँ तक प्राइवेट का है तो आई वुड लाइक कि आप अगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को इसमें इन्वॉल्व कर लें, इंगेज कर लें, क्योंकि ये उनकी डिमेन है। प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी रेगुलेशन जो है वो हेल्थ केयर कमीशन के पास है, तो वो एक अप्रोप्रिएट होगा। सेकेंडली थर्ड पॉइंट पे भी मैं ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड्स के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें ऑलरेडी पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट जो है डेट इज़ एम्पावर्ड टू डू दीज बोर्ड्स with the help of specialized health and medical education department। और इसमें ऑलरेडी 2 बोर्ड्स जो थे वो वर्क कर रहे थे, डेट इज़ वन एट सर्विसेज हॉस्पिटल एंड वन एट मियां मुंशी हॉस्पिटल। रिसेंटली जो है उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ द CM's हिम्मत कार्ड जो पेशेंट लोड है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्यूज़ जो हैं वो 6 मंथ्स तक प्रिवेल कर रही थी। तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने 5 और इंस्टीट्यूट्स में, जिनमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी शामिल है, इन सब में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए हैं और वो फुली फंक्शनल हैं इन 5 हॉस्पिटल्स में। उसमें म्यू हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है एंड न्यू हॉस्पिटल है, तो और गंगाराम हॉस्पिटल है। गंगाराम ये मतलब बेसिकली अभी स्टार्ट हुआ है, जी, ओवर लास्ट 2 मंथ्स जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया है उसके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए। चलें दैट्स और मेरी ये भी सजेशन होगी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो मिसिंग है इसमें। जी बिल्कुल है, दे कुड नॉट मेक इट टुडे, विद द डिसेबिलिटीज, सो आई थिंक दे शुड बी एडेड इन दिस मीटिंग। Yes, very They soon. were actually invited, but yeah. time नहीं था जाने के लिए, just They were busy with some activity of CM, so they couldn't join us today. Yes. Sales पे ये this information you have just shared is very informative and very useful. But we are concerned कि ये सारी चीज़ें जो हैं relevant जो हमारे stakeholders हैं उन तक ये पहुँचाने के लिए obviously एक awareness campaign की ज़रूरत होती है। तो are you taking any step or what are you doing about it? मैडम उसमें वही मैंने अर्ज़ किया कि सोशल वेलफेयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ये एम्बेड उनका है, उनका एक एक्ट भी है इस पर, दैट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वो 2022 में इनेक्ट हुआ था और उसके अंडर ही ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड्स बने थे। तो इसकी जो कंपोजिशन और इसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह या अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो वहीं से रन होंगी, तो अगर वो फोरम पे आ जाएंगे तो वो बेहतर बता सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। जी, मैं भी चेयर से ये जो सजेशन ब्रदर की तरफ से आया, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्पेशल हेल्थ के तरफ से आए हुए हैं, मैं ये जो बात कर रहे हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो कंपल्सरी है, उनके बग़ैर हम इसको लेके ही नहीं चल सकते। तो मेरी चेयर से ये रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट मीटिंग में उनको ज़रूर आप पाबंद करें कि वो इसको रिक्वेस्ट भेज दें ताकि वो ज्वाइन करें हमें। जी ठीक है जी। मैम रुश्ता, DG सजाद सबरा साहब से कल बात हुई थी, वो कल अब वो आ नहीं सके एंड ही रिग्रेटेड, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में ही प्रॉमिस्ड कि वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। जी आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी बस मैं ऐड ऑन ही करना चाह रही थी, क्योंकि बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है स्क्रीनिंग का, ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नीड फील की कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम देखें कि मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन की बहुत बात की जाती है, तो इनको कोई असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करने का जो एक प्रोजेक्ट था वो तालीम प्रोजेक्ट के अंडर यूनिसेफ के साथ, GP के साथ हमने शुरू किया था। तो उसमें फिर हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया कि हमें फ़र्स्ट इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए बच्चों की जो हमारे स्कूलों में इनरोल्ड हैं, एंड देन अगर वो असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कर देने के बाद वो मेन स्ट्रीम हो सकते हैं बच्चे, तो उनको हम कर सकें। तो सक्सेसफुली हमने मोर देन 600 जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम किया है आफ्टर स्क्रीनिंग प्रोसेस, उनको असिस्टिव डिवाइसेस जो प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये इस वजह से मतलब टैप किया गया डिपार्टमेंट को। बट मेरा ये कंसर्न है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी अपनी कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो क्वैकरी को स्टॉप कर सके, और जो मिसडायग्नोसिस करते हैं जिनके पास मतलब प्रॉपर डिग्रीज या वो प्रोफेशनल एक उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, बट वो बच्चों को लेबल और वो सारा करते हैं। अगर तो कोई बॉडी बनी हुई है तो उसको फंक्शनल किया जाए और कोई रजिस्टर्ड मतलब जो लाइसेंस जो है वो अलाउ करना और कैंसिल करना, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। सेकेंडली क्योंकि एक रेफरल सिस्टम
सिस्टम वहाँ से जनरेट होना चाहिए कि हॉस्पिटल में जब ये डायग्नोस करते हैं तो वहीं से वो बच्चे को अगर असिस्टिव डिवाइसेस रेकमेंड कर देते हैं तो उसकी एजुकेशनल प्लेसमेंट इंक्लूसिव स्कूल होनी चाहिए या डेडिकेटेड स्पेशल सेग्रीगेटेड सेटअप में उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वहीं से इनिशिएट होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो ये दो मेरे कंसर्न हैं कि एक वो उनका सिस्टम जो है डायग्नोस करके रेफ़र करना टूवर्ड स्कूल्स, वो एक इनका प्रॉपर फंक्शनल हो, और दूसरा रेगुलेटरी बॉडी जो है ना अगर नहीं बनी हुई तो बनाई जाए, और जो मतलब क्वैकर्स हैं उनको एटलीस्ट जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसडाइग्नोसिस हो रहे हैं और फिर हमारे माशाल्लाह से बड़ी डेडिकेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट हमारे जो हैं, इवन सर ने खुद ही बताया कि जहाँ पे ये लैग कर रहे थे तो हमारे प्रोफेशनल्स ने इनके साथ कोलैबोरेट करके स्क्रीनिंग की है, जैसे असेसमेंट्स करनी थी स्पीच थेरेपी की या उनको साइकोलॉजिकली उनको असेस करना था, तो उसमें हमारी टीम इनके साथ बिल्कुल जेल इन थी। तो इसको मतलब ये दो चीज़ों को अगर आप देखें, ये बड़े इस टाइम पे जो है ना समझें कि हाई रिस्क पे हैं हमारे बच्चे इस वजह से कि मिसडाइग्नोस, मिसलेबलिंग हो रही है और उनकी एजुकेशनल प्लेसमेंट इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। थैंक यू। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है ये क्वैकरी के हवाले से। इसके लिए हेल्थ केयर कमीशन जो है वो काम कर रहा है और इसमें हैवी फाइन्स और पनिशमेंट्स हैं अगर वो विद एविडेंस अगर वो पाए जाते हैं कि जो वो क्वैकरी में इन्वॉल्व हैं या इस तरह की उन्होंने डायग्नोसिशन ठीक से नहीं की है, तो ऐसी सूरत में इवन ऐसे डॉक्टर्स भी जो क्वालिफाइड हैं और अगर उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस पाई जाती है तो हेल्थ केयर कमीशन उस पर पूरा एक्शन लेता है विद फाइन एंड पनिशमेंट्स। जी थैंक यू सो मच। क्योंकि कुछ मैम केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि लाइक नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, पीएचडी डॉक्टर्स हैं या कुछ इस तरह, तो वो उसको एक थेराप्यूटिक और जो उनकी डोमेन नहीं है उसमें भी सर्व कर रहे हैं। दे आर गिविंग मेडिसिन एंड थेरेपीज जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये इस चीज़ के लिए Is there a follow-up for an annual screening or a monthly screening? Yeah, how do you reach out to these kids again? Yeah, as I initially submitted that we have developed a dashboard for it with different ailments and an app as well. But it's under process because we are linking it with their data. Right. They have the hard data when these screenings were done. Right. They made it on hard forms, paper, along with entry on the tabs. We gave our staff the tabs and they entered the data, and it is going to be followed up on regular basis this time around. Otherwise it was just a screening, short term treatment, and then the next year comes the और वो next फिर year. ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बने हुए हैं वहाँ पे रेफर होते हैं बच्चे या वो बस इट्स अ वन टाइम चेकअप उस वक्त ही? It's kind of on-site treatment at first, and then if there's an ailment which needs to be dealt with, treated at some tertiary care, then it has to be referred over there. ठीक, थैंक यू। जी प्लीज़ जी आप मुझे दे दीजिए। रहीम, मुझे नहीं पता मेरे से पहले क्या डिस्कशन हुई है, लेकिन मेरे एक दो चीज़ें जो थी मेरे नॉलेज में थी, मैं चाह रही थी कि आपसे इसको शेयर करूं। अगर इसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आई थिंक इसको वो करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। मैं सब मेंबर्स की तरफ से ये चाहूँगी कि क्या यहाँ पे हमारे कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि यूनियन काउंसिल की सतह से कोई इस तरह के सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट किए जाएं, ताकि जिस फैमिली में, जिस घर में अगर कोई डिसेबल्स मौजूद हैं तो वहीं पे उनकी स्कैनिंग जो है हो जाए और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर्स लेने हैं वो उस पर किया जाए। दूसरी बात यह है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ कहीं पे भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये जो पर्सन्स हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ उनके ऊपर वर्किंग करते हैं।
लेकिन मैंने ये देखा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि जैसे हर डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ये इस हवाले से भी वो होना चाहिए। कुछ लोगों को डिप्यूट किया जाता है कि जो इस तरह का वहाँ पे वर्किंग करते हैं डिसेबल्स पर्सनस के लिए, लेकिन बाकायदा अगर एक असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर पोस्ट क्रिएट कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो लोड है वो कम हो जाएगा, बजाय इसके कि हम किसी और को ही साथ एडिशनल चार्ज दे दें और वो बाकी और सारे मामलात भी देखे। तो उससे बेहतर ये है, मैंने तो यही महसूस किया कि अगर असिस्टेंट डायरेक्टर की एक सिर्फ डिसेबल्स पर्सनस के लिए हर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक बर्डन भी कम हो जाएगा और हमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो ट्रेस करने में, सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। ताहिरा, काइंडली ये आप इसको एलेबरेट कर दें कि आप डिसेबल स्पेशल पर्सन्स की बात कर रही हैं या चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ की बात? सबके लिए, ऑल ओवर। बल्कि हम THKO जो हॉस्पिटल हैं हमारे, उनको उनमें कोई बंदा ऐसा बैठ जाए जो इनकी स्क्रीनिंग करे और इनका वो डाटा जो है वो एंटर हो। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारी तहसील में या हमारी काउंसिल में कितने बच्चे डिसेबल हैं और उनको कैसे एंटरटेन किया जा सकता है। मैडम, हर हॉस्पिटल में जो है ना THQ या DHQ लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जो है ये इस तरह के मेडिकल बोर्ड्स जो हैं वो बैठते हैं बाकायदा, और फिर उसके बाद एग्ज़ामिन होता है और फिर उसके बाद उनको जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मैं यही चाह रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो इसलिए अगर इसको थोड़ा सा अगर हम देख लें ताकि ड्यूटीज़ जो हैं वो जब उसकी वो डिवाइड हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। आप जो कह रही थी DHQ वाला, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैंने FCNA के साथ मिलके उनके जो फार फ्लंग एरियाज़ थे हमने वहाँ पे कैंप्स किए, तो हमने वहाँ के DHQs को इन्वॉल्व किया था, डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट को इस तरह से इन्वॉल्व किया था कि उनके जो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर से उनसे डेटा मांगा, लेकिन डेटा अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है किसी भी तरह के स्पेशल नीड्स का। उसके लिए आइडिया जो जनरल काशिफ ने दिया, उन्होंने कहा कि जो वहाँ की लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं दे गो डोर टू डोर, यहाँ पे तो इतना नहीं है, उनके थ्रू उन्होंने पता करवाया किस किस घर में कितने बच्चे हैं, वो पूरा डाटा कलेक्ट किया गया। फिर हमने वहाँ पे कैंप अरेंज किया, उन फैमिलीज़ को लाया गया, वो घर घर गए, बसों में बिठा के उन फैमिलीज़ को लेके आया गया, उनकी स्क्रीनिंग हुई, आइडेंटिफाई हुए ये जो हैं वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, ये ऑटिस्टिक हैं, किसको क्या इंटरवेंशन चाहिए। सो ये हमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम कर लें, और स्क्रीनिंग का जो आपने इसको कंपल्सरी कर दिया जाए। एग्जैक्टली वहाँ पे अपने बच्चों की एंट्री करवानी है या उनका कोई कार्ड बन जाए इस तरह, क्योंकि पेरेंट्स हाइड करते हैं, जाएगा तो तब पेरेंट्स बहुत से लोग अपने बच्चे को सामने ही नहीं लाते अगर उनकी कोई डिफरेंट नीड्स हैं, तो उसको एक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा सर, जो आपने स्क्रीनिंग कैंप्स की बात की, जो स्क्रीनिंग का डेटा था वो आई एम नॉट श्योर कि वो कैंप्स लगाए थे उसके थ्रू आपने आइडेंटिफाई किए स्पेशल नीड्स बच्चे, या वो किस तरह की स्क्रीनिंग थी? We went to their institutions. Okay. Wherever they were, our team went there, identify kids with different needs and with different ailments. It was not a field-based, it was institution-based. Okay. Kind of. And I would like to respond to ma'am's idea as well. It's worthwhile, ma'am. We need to keep a track of that so that we can treat until and unless we identify the scope of the problem and the issue or the challenge, how we're going to deal with that. So currently there's a project recently being launched of community health inspectors. They are going to have a tab with them with all kind of socio-economic questions. How many members, what ages, what kind of ailments, test, treatment. It's going to be a comprehensive one, hopefully. So they're working on it already. Your idea, ma'am's idea, it makes perfect sense and it's going to be, inshallah, hopefully implemented like that. कि सबका ट्रैक रखा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम UC लेवल। यस, मैडम की बात को मैं ये इस हवाले से थोड़ा सा लेके चलूँगी कि देखें, मैं खुद एक NGO जो है वो चला रही हूँ, उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये जो वर्किंग आप बता रही हैं ना, ये मैं काफ़ी अरसे से करती आ रही हूँ, लेकिन ये उस तरह फ्रूटफुल नहीं है। अगर हम UC लेवल पे इसको करें
और गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास जो डाटा आएगा, और उसके अलावा अब देखिए गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है डिसेबल्स पर्सनस के लिए, उसमें 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं ना, कि जो काम कर सकते हैं और जो काम नहीं कर सकते जो डिसेबल्स, तो वो उस हवाले से जब उसको थोड़ा सा हमने वो कर दिया, तो फिर मज़ीद अगर आगे हम इसको यूसी लेवल पे लेके चलेंगे और लोगों को भी पता होगा कि मतलब जो काम कर सकते हैं उनके लिए फौरी तौर पे जो है ये इस तरह का वो किया जा सकता है। मतलब ये सबके लिए कर रही हूँ डेफिनेटली, मतलब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके जो बच्चे अगर वो इस पोजीशन में है कि आगे जाके वो काम नहीं कर सकेंगे, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को पता होगा कि आगे जाके इन्होंने इसके लिए कैसे वो उस बच्चे को मूव कराना है ट्रीटमेंट के हवाले से, ये जैसे भी है। तो यूसी लेवल पे अगर हम इसको वो करें और गवर्नमेंट उसको जो है वो टेकअप करे, तो वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा बनिस्बत इसके कि हम मतलब अपनी अपनी तंजीमों के तौर पे या वैसे कर रहे हैं काम, उसका मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने बहुत अरसा ये किया है काम। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैंने इसलिए कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया था। गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है तो आपके पास एक सॉलिड डाटा आएगा। अभी हमारे पास डाटा ही नहीं। देखिए अमेरिका बताता है 1 of every 36 चिल्ड्रन आर ऑटिस्टिक। हमें नहीं पता हमारे कितने बच्चे ऑटिस्टिक हैं और कितने और हैं जो हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2038 एवरी चाइल्ड बॉर्न विल बी ऑटिस्टिक। क्या हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं? डाउन्स कितने, मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। स्क्रीनिंग पहले होगी, अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट होगी तो हम काम शुरू करेंगे। उसके लिए सजेशन ये, जैसे आपने कहा मेरी NGO है, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है ये हमें कहें, हम इनको हेल्प करेंगे क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। वी कैन अरेंज स्क्रीनिंग कैंप्स, एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें हमारे कितने बच्चे हैं, किस एज ग्रुप में हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनको कब हमने उनकी इंटरवेंशन स्टार्ट करनी है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा आएगा तो हम उसका फिर एक स्टेप ले सकते हैं डेफिनेटली। जी डॉक्टर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल हेल्थ केयर से आए हुए हैं वो अगर डिटेल में जा सके मेरी इस बात से कि जैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं, अभी हमने जो थैलेसीमिया बिल पास किया है, इससे पहले जो हमारी डिस्कशंस होती रही उसमें मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई कि हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है बिफोर बर्थ कि अगर कोई जो चाइल्ड है वो विद डिफरेंट एबिलिटी या डिसेबिलिटी वो है, तो फिर ऐसी सूरत में या तो वो अबॉर्ट हो जाता है या फिर वो उसकी बर्थ हो जाती है। तो क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड या कोई ऐसा डाटा हमने बनाया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में? क्या ऐसा कोई डाटा मौजूद है? ये इसके बारे में आप हमें कुछ मज़ीद बता सकेंगे? क्योंकि मेरे नॉलेज में सिर्फ इतना ही है। मुझे जी मेजर साहब अगर आप कुछ जी, इसमें मेरी एक सबमिशन है बुखारी साहब, मेरी एक सबमिशन है कि अगर हम इसको ग्रास रूट लेवल पे जाके चेंज करें कि जब बच्चे का इंदराज सर्टिफिकेट बनता है, यूनियन काउंसिल में बनता है, तो वहीं पे एक खाना होना चाहिए, उसमें बच्चे की सेहत के बारे में, ज़हनी हालत के बारे में, जिस्मानी हालत के बारे में एंट्री होनी चाहिए उसमें। वो हमें चेंज करना पड़ेगा। आर्ट रिक्वेस्ट, लेकिन उसमें सर एक चीज़ है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम cerebral palsy it can be identified, but if it's only the IDD then IDD cannot be identified right away at the time of the birth, but it can be done to certain ailments but not to all of them. Secondly, जो मैम कर रही थी बात, that is a grey area मैम. If people are gonna abort that, they're not gonna tell us. They're gonna do it illegally. इसके ऊपर मैं अबॉर्शन तो वैसे ही नहीं, इसमें ये है कि इसके ऊपर ये चूँकि बहुत एक सेंसिटिव बात है और मैं चाहूँगी कि इसको नेक्स्ट मीटिंग में, इसमें हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट से कुछ फतवा और कुछ जजमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी रोशनी में उलमा कराम के फतवे के मुताबिक हम उसको लेके आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये एक शरई मामला है और हम इसमें डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर सकते। मैडम इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो अभी सर ने डाटा पेश किया है 39,000 बच्चों की स्क्रीनिंग का, ये सारे के सारे बच्चे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं और ये स्पेशल एजुकेशन के अदारों में पढ़ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इनिशिएटिव स्पेशल एजुकेशन का था, हमने कोलैबोरेट किया और हमने अपने बच्चों की ये सारी असेसमेंट करवाई इनकी टीम से, इसमें हमारी भी टीम इन्वॉल्व थी। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे उनकी असेसमेंट कैसे होगी, या जो बच्चे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कि क्लेम करता है स्कूल के मोर देन 1 लाख हैं, उनकी असेसमेंट कैसे होगी, उनको कौन सी चीज़ की नीड है, ये भी एक जो है ग्रे एरिया है, इसमें भी जाने की ज़रूरत है ताकि उन बच्चों को भी फैसिलिटेट किया जा सके प्रॉपर स्टडीज़ के लिए। सही है।
जी वो तो डायग्नोज नहीं हुए, लेकिन मैडम असेसमेंट जो है वो इवन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी भी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने जब ये कॉकस स्टार्ट किया तो हमारे अपने नॉलेज में भी ये बात नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से हमें ये सर्टिफिकेट मिलता है। अभी हमें जो है वो अपने डिपार्टमेंट की रिसोर्स हमें रिप्रेजेंटेटिव आए हैं तो उन्होंने हमें बताया है। तो मेरा ख्याल है कि हमने ये जो एक चीज़ हमें अचीव की है या हमारे नॉलेज में आई है, इसकी अवेयरनेस भी देने की बहुत ज़रूरत है। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि सिर्फ ये 2 हॉस्पिटल्स नहीं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर कॉकस बैठ के काम कर रहा है और उसके इल्म में ये बात नहीं है तो आम लोगों के इल्म में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जो 5 हॉस्पिटल आपने बताए इनको हम मैसेज शेयर कर दीजिएगा ताकि हम, मगर इसकी अवेयरनेस के लिए तो हमें ज़रा कैंपेन तो करनी चाहिए उसकी, के बताना चाहिए। बिकॉज अगर मुझे नहीं पता था यहाँ बैठे हुए, सो आई एम वेरी श्योर के देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको नहीं पता है। सो हाउ वुड वी डू दैट? डू यू हैव लाइक अ वेबसाइट जहाँ पे आप इन चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं? दैट्स वन थिंग, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी वेबसाइट्स भी नहीं देखते हैं। You know, they're more into the Instagram, Facebook. Would you have a Facebook page also जहाँ से इनको इत्ला दी जाए? Anything like that? I think we can, you know, social media को ज़रा हम थोड़ा सा on board लेते हैं and you know we can take things from there. वहाँ से बहुत सारी awareness चल जाती है, मतलब तो एटलीस्ट चले सब अपनी वेबसाइट पे और ट्विटर। I think let's move on. लोग मतलब हॉस्पिटल्स में भी ये डिस्प्ले करवा देते हैं कि जो डिसेबिलिटी सेंटर्स जहाँ जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पे हम कह देते हैं उनसे कि वो इसको डिस्प्ले कर दें प्रोमिनेंट प्लेसेस के यहाँ पे डिसेबिलिटी असेसमेंट हो रही है। और अदर देन दैट जो ऐप इसके लिए यूज़ हो रही है, अब जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, इवन आपको उसके लिए अप्लाई भी करना है तो थ्रू ऐप आप अप्लाई करते हैं। एक ऑनलाइन फॉर्म है, आप उसको फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स हो जाएगी विद अ सर्टेन हॉस्पिटल दैट इज नियर बाय टू यू अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट। अब वो हॉस्पिटल आपको असाइन हो जाएगा, आपको टाइम अलॉट हो जाएगा कि आपने इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में जाना है, इस टाइम आप जाएंगे, अपना असेसमेंट करवाएंगे, देन आपको ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब वो पेशेंट या उसका अटेंडेंट कोई भी स्क्रॉल करेगा तो वो देख सकता है कि कितने मतलब हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और वो अपनी नियर बाय फैसिलिटी को चूज़ कर सकता है। मैं समझती हूँ डिपार्टमेंट ने ये बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई है। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि ये अगर हमारे नोटिस में आया है तो इसकी अवेयरनेस कैंपेन हम भी चलाएं। जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एजेंडा। अब ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन है तो लेट्स हैव इट। तो फिर उसके बाद फिर हम दोबारा से क्वेश्चन, क्योंकि अब सेशन भी शुरू होने वाला है तो वी नीड टू रैप इट अप। जी थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं थोड़ी सी ब्रीफिंग, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगी। जो डाटा के हवाले से बात हो रही है, इसको कलेक्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, नादरा आपका जो मेन एक उसको करता है रजिस्टर, और आपका जो हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये क्लोज कोलैबोरेशन में सिंक यानी आपस में होके चलें तो यू कैन। जैसे हम ऑटिज़म के स्कूल बनाने के लिए डाटा की मतलब सर्च कर रहे थे, उसमें हमने पीएनडी से अपना केस भी अप्रूव करवाना था, तो सबसे बड़ी हर्डल हमें डाटा स्टैटिस्टिक्स की वजह से पेश आ रही थी कि हम उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सक रहे थे कि हम इतने से बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं। तब हमने टैप किया कि देयर आर सो मैनी हॉस्पिटल्स, जो कि मतलब हॉस्पिटल्स की आपस में भी कोलैबोरेशन नहीं है। मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरह जहाँ पे मेन यानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, वहाँ से फिर हमने पर्सनली हमारी सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन जो है उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट करके तो वहाँ से डेटा लिया कि आपके कितने यानी केसेस जो हैं, केस लोड किया है जो ऑटिज़म के साथ आता है या किसी और डिसेबिलिटी के साथ, तो उन्होंने उनके पास डाटा मौजूद था, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो एक बात इस चीज़ की ज़रूरत इस चीज़ की है कि डाटा हर जगह पे मौजूद है, सिर्फ उसको इकट्ठा करने के लिए कोई एक सिस्टम अगर बना लिया जाए तो आई गेस कि ये मसला हल हो सकता है। अभी जैसे सेंसस भी हुआ है 2023 का, तो उसमें भी आपके पास अच्छी खासी जी बताएं। वो हाँ बिल्कुल जी कहते थे डोर टू डोर जा सकते लगाते हैं, वो तो डोर टू डोर जाती हैं। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं ब्लड। नो डाउट कि हमें अवेयरनेस जो है ना रेस करने की बहुत ज़रूरत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं स्टार्ट करती हूँ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है डिपार्टमेंट का, देन अचीवमेंट्स हैं जो अंडर सीएम पंजाब का जो विज़न है उसके मुताबिक है। हमारी डिपार्टमेंट हमारा 2003 में जो है ये सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें हमारा जो HR है सैंक्शन सीटों का वो 9376 है और अवेलेबल इस टाइम पे जो 39,000 हमारे जो बच्चे इनरोल्ड हैं स्कूलों में उनके लिए जो अवेलेबल स्टाफ है वो 6459 है। इसी तरह से आप इंस्टीट्यूशंस हमारे जो 303 इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है पूरे पंजाब में और इनरोलमेंट हमारी इस टाइम पे 39,000 से क्रॉस कर चुकी है। अभी पास आउट हो रहे हैं और न्यू कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये कुछ उसकी बाइफर्केशन है डिसेबिलिटी वाइज इनरोलमेंट की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं ऑटिज़म के साथ बच्चे वो 259 हैं और डिफरेंट बाकी डिसेबिलिटी कैटेगरीज़ की यहाँ पे बाइफर्केशन है। ये आप बाद में उसमें से देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में से। थैंक यू। ये हमारे डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं जिसमें पॉलिसी और लेजिस्लेशन फॉर्मुलेशन आ जाती है, मैटर्स रिलेटेड टू एजुकेशन और वोकेशनल इनकी जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से। देन टीचर्स ट्रेनिंग जो है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है टीचर्स की, और हम ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस हैं हमारे 2 पूरे पंजाब में, उनके थ्रू हम ब्रेल बुक्स जो हैं वो प्रिंट करके ना सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर पे और अगर कहीं और से भी हमें रिक्वेस्ट की जाती है तो उन्हें फ्री ब्रेल बुक्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हमारा जो है करिकुलम का एक पूरा सेल है जिसमें हम ना सिर्फ डेवलपमेंट डिज़ाइन जैसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के लिए ऑल्टरनेटिव करिकुलम आजकल डिज़ाइन किया जा रहा है, अडेप्टेशंस पे काम करते हैं, जैसे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं, उनको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है उनके सिलेबस में। इसी तरह से स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है डिपार्टमेंट, और कैंपेन और पब्लिक अवेयरनेस एक हमारा ख़ास यानी एक फंक्शन है जो हम एवरी ईयर जो इनरोलमेंट ड्राइव की फॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं। जब सेशन हमारा स्टार्ट होता है उससे पहले ही ये स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट टू क्रिएट द सॉफ्ट इमेज ऑफ डिसेबिलिटी इन द सोसाइटी फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे जो हैं उनको हम देख रहे होते हैं। रिसर्च सेंटर हमारा है अपना सेल अभी डेवलप हो रहा है डिपार्टमेंट में। इसी तरह से बजट अकाउंट ऑडिट्स वगैरह सर्विस मैटर्स देख रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे ये फंक्शंस, ये प्राइवेट जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब में उनकी रजिस्ट्रेशन भी ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये स्पेशल एजुकेशन की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आपके थ्रू जी। इसी तरह से ये हमारा इंसेंटिव पैकेज है जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड है कि उनको 3 यूनिफॉर्म और 2 शूज़ का पेयर जो है वो दिया जाता है साल में। फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, 800 इनका मंथली स्टाइपन है, टेक्स्ट बुक्स और ब्रेल बुक्स फ्री हैं इनके लिए, और फ्री मील फॉर बोर्डिंग स्टूडेंट्स है, और फ्री असिस्टिव डिवाइसेस का ये इनिशिएटिव अभी ऐड हुआ है हमारा जो। इसी तरह से ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स अंडर द विजन ऑफ CM साहिबा है, जिसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म स्कूल जो है लाहौर में वो स्टार्ट किया है। उसका ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वो सितंबर 2025 तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। 12 हमारे ऑटिज़म यूनिट्स जो हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं। जी, comment with your permission, Chair. Go ahead, please. I request कि ये slow learner की जो term और स्कूलों के नाम आपने रखे हैं, please kindly reconsider, review करें. There is no ailment as slow learner. जी बिल्कुल, ये हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इस पे हमारे कंसल्टेटिव सेशंस भी एक्सपर्ट्स के कंडक्ट हुए हैं और हमने रीनेमिंग स्कूल्स की करके नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, वो हम कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जमा करवा चुके हुए हैं। ठीक है, अच्छा मेरी क्लासेस की तरह। इसी तरह से हमने 28 स्कूल्स जो हैं हमारे पूरे पंजाब में वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे अपग्रेड कर दिए गए हैं। मॉनिटरिंग वैल्यूएशन फ्रेमवर्क हमारा जो है वो बन रहा है, मतलब काफ़ी बन चुका है, अंडरवे है।
इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हमारी SOPs चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से वो हो चुकी हुई है। हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप प्रिपेयर कर लिया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। करिकुलम इनोवेशंस कर रहे हैं। असेसमेंट से रिलेटेड हम डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है, जिसमें अभी पूरी एक एग्रेसिव एक्टिविटी पूरे पंजाब के इदारों में करवाई गई है इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों की असेसमेंट के हवाले से, ताकि हम ये उनको कैटेगराइज कर सकें कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में कितने बच्चे फॉल करते हैं, ताकि उसके मुताबिक हम उनकी फिर एजुकेशनल और थेराप्यूटिक प्लानिंग कर सकें। इसी तरह से हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें हम रेगुलरली राउंड द ईयर हम उनकी ट्रेनिंग्स टीचर्स की और एलाइड प्रोफेशनल्स की कर रहे होते हैं। पूरा हमारा एक मैकेनिज़्म है। और इसके अलावा हम जो बच्चे जैसे अभी हमने स्क्रीन आउट हुए हैं उनको असिस्टिव डिवाइसेस दे दिए हैं, या फिर ऐसा बच्चा के विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, उसको हम मेन स्ट्रीम कर देते हैं। और ये सारे अचीवमेंट्स हैं हमारी। अब हम एजेंडा पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था PDU की तरफ से जो हमारे साथ शेयर किया गया था डॉक्यूमेंट, वो था कि क्या IEPs हमारे बच्चे जो है विद ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफर करता है। येस, वी हैव प्रॉपर मैकेनिज़्म। हमारे बच्चों के इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स बनाए जाते हैं। आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसका जो पैटर्न है सैम्पल वो अवेलेबल है, और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मेरे पास भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और वो पोर्टफोलियोज जैसे मैं बच्चों के लेके आई हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हर जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम भी उसकी एक काइंड है, टाइप है, और ऑटिज़म के साथ भी जो बच्चे हैं वो IEPs के साथ जो हैं वो चल रहे होते हैं। बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन होती है, रिव्यू होता है, और फिर उसको रिवाइज़ किया जाता है टर्म वाइज। इसी तरह से सेकंड था पॉइंट के आर देयर एनी गवर्नमेंट सपोर्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। तो उसमें यस, हाँ जी, उसमें सब भी वो आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ और ऑटिज़म के साथ। हमारे अभी जो 14 शादाब स्कूल हैं पूरे पंजाब में इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के लिए, जो डेडिकेटेड इन्हीं के लिए हैं, उनके अंदर हमारा जो है वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट जो है एक्सटेंडेड वो मौजूद है, इस्टेब्लिश हो चुका है। और उसमें हमने टेफ्टा से अप्रूव्ड 7 जो कोर्सेज़ हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि 4 से 5 डिसेबिलिटीज़ को केटर कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का और एजुकेशन का इंतज़ाम है। हमारे इदारों में वोकेशनल टीचर्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। और नेक्स्ट आपका एक पॉइंट था कि आर देयर एनी ऑन गोइंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर हैंडलिंग न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। तो ये येस, वी हैव फुल फ्लेज हमारा जो इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है फॉर द टीचर्स जो इन बच्चों को डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे करवाए जा रहे होते हैं टू हैंडल दिस चिल्ड्रन। और इसी तरह से मैडम शुमाइला बैठी हैं, अभी हमने 2 बैचेस हमारे जो हैं ऑटिज़म के ऊपर डेडिकेटेड हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनकी करवा चुके हैं, जिसमें ABA, टीच, सर्ट्स और इस तरह के जो उनकी थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं कि किस तरह से उन बच्चों के साथ आप काम करेंगे, वो हम अपने एक्सपर्ट्स इसी करते हैं, जो फिर हमारे ऑटिज़म यूनिट्स जो इस्टेब्लिश्ड हैं 12 उनमें वो काम कर रहे हैं। इवन जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के स्कूल्स हैं उनमें भी वो फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इस पे सॉरी आपने मुझे मेंशन किया था, वुड लाइक टू ऐड समथिंग। लास्ट ईयर बिल्कुल मैंने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी जिसमें 32 टीचर्स अक्रॉस द पंजाब आए थे, जिससे मैंने ABA ट्रेनिंग, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दैट ट्रेनिंग वाज नॉट इनफ, वंस इन अ ईयर राइट फॉर 4 days ओनली। उससे आप एक स्टाफ को इतना प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर सकते कि वो इन बच्चों को हैंडल कर सकें। ये ऑन गोइंग ट्रेनिंग का मामला है, स्पेशली फॉर ABA, वहाँ पे उनको कंटिन्यूस सुपरविजन चाहिए होती है। और मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा सबसे जो इसको ज्वाइन करने का पर्पज़ भी था कि मैम हम ABA में लैग कर रहे हैं। हमारे ABA इज़ द ओनली एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड
फॉर चिल्ड्रन विद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और हम पाकिस्तान में ABA में ना हमारा कोई मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ना कोई इसमें सर्टिफिकेशंस ऑफर हो रही हैं, ना ट्रेनिंग। हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जिन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो ट्रेन करते हैं कुछ लोगों को, बट दैट इज़ नॉट इनफ। और रेगुलेटरी बॉडी की जो मैम खौला ने भी बात की उसको मैं बिल्कुल, वो मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडा था कि जो क्वैकरी है, आई हैव हर्ड दैट द PN ऑफ द स्कूल इज़ डूइंग OT ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और वो जिस तरह से उनको हैंडल कर रहा है, जो अब्यूज़ उनके साथ, मेरे अपने बच्चे, मेरा सबसे अहम इम्पॉर्टेंट तारुफ है, मेरे 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं जी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं ये बंदा नहीं थी इस फील्ड का। तो उनको मारा गया है, इन बच्चों को मारा जा रहा है कंटिन्यूसली, इनके साथ इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है, नोबडी इज़ अकाउंटेबल। कोई बोर्ड तो हो जो देखे कि क्या ये लोग इस काबिल हैं कि इनको बच्चा, इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में चेक किया जाता है कि इस बंदे का स्टेमिना क्या है, इसके अंदर कोई एम्पैथी है कि इन बच्चों को डील कर सके, कि कल को वो टेबल के नीचे से उसको चुटकियाँ भर रहा है। अभी कल मेरे पास एक थेरेपिस्ट आई, उसने एक स्कूल का जिक्र किया कि मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ की थेरेपिस्ट बच्चे को नीचे से चुटकियाँ भरती है, ऐसे ऐसे झंझोड़ती है, और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो हमारे बच्चे क्या इतने वल्नरेबल हैं कि हम उनको इसलिए भेजते हैं, हम तो इसलिए भेजते हैं ना कि वो बेटर हो जाए, और हमारे बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। कोई तो रेगुलेटरी बॉडी हो जो इनको देखे कि इफ़ यू आर डूइंग दिस तो आपको क्या, आपने कहा कि फ़ाइन है, बट आई डोंट थिंक कि कभी किसी पे फ़ाइन हुआ होगा। इनको लाइसेंसिंग का पूरी दुनिया में प्रोसीजर है कि मैं लाइसेंस्ड हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्या ABCDEF जो हर गली में दुकान खुली हुई है, कि उनके पास लाइसेंस है? उनको किसने लाइसेंस, उनको किसने ऑथोराइज़ किया कि आप अपना सेंटर खोलें और आप इन बच्चों की ज़िंदगियों से खेलें, इनको मारें पीटें, इनको धकेलें, इनके साथ जो कुछ भी करें? मैम, ये इट्स आर ऑफ द नीड कि हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो लाइसेंस इशू करे, कि चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट है, चाहे वो ABA है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, क्या वो एलिजिबल है, क्या वो लाइसेंस्ड है इन बच्चों के साथ काम करने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। और ABA में ट्रेनिंग्स, एटलीस्ट सर्टिफिकेशंस हम ऑफ़र करना शुरू करें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। बिहेवियर मैनेजमेंट, जैसे सर से भी बात हुई कि हम हॉस्पिटल जाते हैं हमारे बच्चों को एलियंस की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इनको कैसे डील करना है। तो इसमें तो कम अज़ कम ये जो ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, इट्स अ ग्रेट स्टेप, बट दैट्स नॉट इनफ मैम। एक साल में 32 लोगों की ट्रेनिंग 4 दिन की, दैट्स नॉट इनफ। नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक तो अप्रिशिएट भी करूँगी, इंडोर्स करूँगी। दूसरा, ये सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, हमारी रेगुलर, हमारा पूरा ट्रेनिंग का कैलेंडर होता है एनुअल, और ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है, और हम साल में बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो कैलेंडर इस टाइम मेरे पास है, आई कैन शेयर। और इसके अलावा ये कि वो एक सेशन था जो मैं जी, ये आप जो जिस ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, डू यू कोलैबोरेट विद द अदर NGOs, द अदर ऑर्गेनाइजेशन? जी बिल्कुल, क्योंकि हम रिसोर्स पर्सन के तौर पे फील्ड में से, जैसे जो सर्व कर रहे होते हैं इन बच्चों को, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पूरा एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो ऑटिज़म को या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो एक्सपर्ट्स जैसे स्पीच थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सेशन जो देते हैं जैसे बिहेवियर थेरेपिस्ट, वो डील कर रहे हैं, उनको इनवाइट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर पे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे मैडम शुमाइला ने अभी बताया, हमें पता चला कि ये परफॉर्म करनी है तो हमने इनको ऑन बोर्ड लिया। हमें पता चला डॉक्टर अनिका सुहेल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस फील्ड में, उन्हें लिया। ओसी स्कूल फॉर ऑटिज्म है जी, ओसी स्कूल जो है ऑटिज्म के ऊपर, वो भी एक काफ़ी, उसका भी नाम है। तो वहाँ पे सर्ट्स और टीच की स्पेशलिटी उनके पास है, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया। 10 डेज़ की डेडिकेटेड उनकी ट्रेनिंग भी हमारे प्लान में शामिल थी। तो ये हमारी हमसे शेयर करेंगी कि पूरे साल में वो जो ट्रेनिंग है वो कब कब होती है, फॉर हाउ लॉन्ग? बिल्कुल मैं आपसे शेयर कर लूँगी। हाँ जी, क्योंकि ये हमारा जो मॉड्यूल बना वो हमारा 6 वीक्स का था ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट थेरेपीज जो हैं उनके ऊपर हमने ओरिएंटेशन और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी थी। उसके बाद कंटिन्यूसली वी आर इन टच विद देम, हम उनका जो वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने इदारों में जाके उसको मॉनिटर करते रहते हैं। जहाँ उनको चैलेंजेस आते हैं वो हमसे शेयर करते हैं और हम दोबारा उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स रखवाते हैं। ये ऑन गोइंग है, हम मतलब करवाते रहते हैं, ये नहीं कि हमने साल में एक ही दफ़ा उनकी ट्रेनिंग करवा दी है। वी कंटिन्यूसली। सो वेयर डज दिस ट्रेनिंग हैपन एक्चुअली? हमारा ट्रेनिंग आप कहाँ पे देते हैं? सेंट्रलाइज हमारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, सेंट्रलाइज वहाँ पे हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है। ठीक है, पूरे पंजाब से हम जो नॉमिनेशंस होती हैं ट्रेनीज की, उनको हम वहाँ पे इनवाइट करते हैं
वहाँ पे हमारे 2 से 3 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, ऑडिटोरियम है, पूरा हमारा एक ट्रेनिंग का सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। फैकल्टी है हमारी वहाँ पे जो कि MS या MPhil या डॉक्टर्स हमारे जो रेलिवेंट फील्ड है, जैसे कि साइकोलॉजी है या कोई भी एरिया है उनका, क्लिनिकल साइकोलॉजी है या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो उनकी हमारे पास वहाँ पे टीम मौजूद है, लेक्चरर्स, और फिर वो खुद भी लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें लगे कि किसी एरिया में और ज़्यादा मज़ीद हमें कोई एक्सपर्ट फील्ड से लेने की ज़रूरत है तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर को टच करते हैं। तो वैसे भी आपको प्राइवेट सेक्टर तो टच करना ही बिल्कुल, हमारे साथ के बगैर भी तो ये सारा सिलसिला चल नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। ओके जी जी। तो ये हम उसको, बल्कि अभी हमारा जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल है वो भी हमारा बन रहा है फ्रेमवर्क, और इंशाल्लाह वो एक बिल्कुल जैसे डेवलप हो जाएगा तो उसमें और ज़्यादा कंटिन्यूसली हम ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑफ़र कर सकेंगे। जी, विद द परमिशन ऑफ चेयर, मैं मैडम डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, इन्होंने भी एक बात की, हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो अभी आपने कहा है कि पता नहीं फ़ाइन होता है या नहीं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्पेसिफ़िकली ये जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या विद डिफरेंट एबिलिटी, इसके लिए एक स्पेसिफ़िकली फ़ोरम नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन में मैं मतलब अभी तो मैं एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। मेरा खुद भी हेल्थ केयर कमीशन में बहुत सारे केसेस मैंने दूसरी साइड से किए, यानी क्लाइंट की साइड से, डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट रहे, और उसमें ऐसा भी हुआ कि अगर एविडेंस नहीं आई तो क्विट हो गया। और ऐसा भी हुआ, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे और उन्होंने ये जो जॉ होता है वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो लड़की का टूट गया और वो फ्रैक्चर हो गया उसके अंदर, और उस नेग्लिजेंस की वजह से बाकायदा उनका जो लाइसेंस है वो ऑन स्टेक है। इसी तरह से एक और डॉक्टर का है, और जो क्वैक्स हैं उनके जो क्लिनिक्स हैं उनको सील कर दिया जाता है, उनको फ़ाइन किया जाता है, और अगर वो अपनी कोई अथेंटिक डिग्री या सर्टिफिकेशन शो नहीं कर पाते तो वो परमानेंटली उनको क्लिनिक सील हो जाता है। उसके बाद फिर उनको पनिशमेंट भी मिलती है और फ़ाइन भी होता है। इसमें एक चीज़ में चूँकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनिशिएटिव नहीं लेते, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई फोरम भी ऐसा मौजूद है जिस पर हम जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक चीज़ से मैं ज़रूर कहूँगी कि वो कभी ऐसा लेंथी हो जाता है और उसकी वो एक लिटिगेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट होकर पीछे हट जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक मैं नॉर्मल प्रोसेस आपको बता रही हूँ कि जब भी कहीं क्वैकरी होती है या किसी डॉक्टर की वजह से कोई नेग्लिजेंस होती है, चाहे वो कोई अडल्ट पेशेंट हो या कोई माइनर चाइल्ड हो या कोई चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटी हो, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे पास ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसमें स्पेसिफ़िकली ऐसे बच्चों के लिए कोई एक फोरम बना दिया जाए, ऐसा स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं है। उसी की मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही थी। अभी रिसेंटली मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने एक बच्चे को मिस हैंडल किया, मैंने उसको टर्मिनेट किया, उसने लेबर कोर्ट में जाके मेरे पे केस कर दिया कि मुझे टर्मिनेट किया है, और मैं वो भुगतती फिर रही हूँ कि इसने इस बच्चे के साथ किया। आप उसके बॉडी पे ब्रोजेस देखें, बट यू नो कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ये है कि ये जो अभी आप फिजिकल अब्यूज़ की बात करी ना, इसके लिए होता ये है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी इनिशिएटिव नहीं लेते, वरना ये क्रिमिनल ये क्राइम है तो इसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो सकती है और उसको पूरा क्रिमिनल केस बनता है इसके ऊपर, लेकिन लॉ मौजूद है इसके ऊपर, लेकिन लोग इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि जी अब ये लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली वो होती भी है प्रॉब्लम, लेकिन कहीं से तो हमें शुरू करना है, किसी को तो इनिशिएटिव लेना है, किसी को तो सैक्रिफाइस करना है, तो फिर जाहिर है कि उसको लेके चलना पड़ता है, मुश्किल हालात को फेस करना पड़ता है। We'll take this up again. ये जो इन्होंने जी आप पूछ लीजिए प्लीज़, गो अहेड। हाँ जी हाँ। जैसे आपने कहा कि वो नीचे से चुटकियाँ कर रहे होते हैं, क्या उनकी भी ट्रेनिंग होती है जैसे आप एक्सपर्टिस को ही ट्रेन करते हैं? ये तो वो होते हैं ना बंदे जिन्होंने ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारना होता है बच्चों के साथ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये था कि नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ द
इन स्टेट्स और सेंटर्स इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग प्रोसेस जो भी वो मैंने जैसे बताया कि हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है फॉर द टीचर्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ये 31 शेरशाह ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में लोकेटेड है, जहाँ पे हम ये सारा ट्रेनिंग्स का प्रोसेस जो है उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। लास्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टाफ इज़ ट्रेंड इन ABA विच इज़ एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी, तो इसमें हमारे पास एज सच ये डाटा कभी हमारी चूँकि ये वो नहीं है, समझें कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इस डेजिग्नेशन के साथ नहीं होते हैं कि ABA सर्टिफाइड या फिर ABA हम उसको हायर करें। हमारे यहाँ जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं या फिर सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं। अब वो पर्सनली बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ABA कर रहे हैं, उनके पास यकीनन सर्टिफिकेशन होगी, हमने डेटा कंपाइल नहीं करवाया, लेकिन हम उनकी ट्रेनिंग्स यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं ABA पे, और इसी तरह से हम एक्सपर्ट्स को फ्रॉम द फील्ड इंगेज करके उनको हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं। इवन हमारे पास जो पूरी एक लाइट प्रोफेशनल्स की टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बिहेवियर थेरेपिस्ट, जिसमें वो बच्चे को किस तरह से उन्होंने उसके सेशंस लेने हैं और उसके साथ प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में काम करना है। तो इसलिए इसका कोई डेडिकेटेड हम स्पेसिफिक डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट येस श्योर बहुत सारे होंगे जो कर रहे हैं। ठीक है, वी विल टेक दिस अप लेटर इन द नेक्स्ट मीटिंग आल्सो, आपसे मैं टाई अप कर लूंगी। एंड नाउ वी हैव प्लीज अदर मेंबर्स हियर आल्सो। थैंक यू वेरी मच मैडम, सॉरी हम ज़रा देर से हमने ज्वाइन किया मीटिंग, हमारी PSC की मीटिंग थी, अभी कंक्लूड हुई है तो हम सीधा इधर आ गए। थैंक यू मैडम, ये आपसे पर्टिनेंट है ये सवाल भी क्योंकि आप स्पेशल एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे इल्म में ये आया था कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बच्चों के एंड साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इनका कोई प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है या प्रमोशन का जो इनका तरीक़ाकार होता है वो अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी बात ये दुरुस्त है? सर ऐसे है कि हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि और भी कई पोस्टें हैं जो कि आइसोलेटेड पोस्टें जिनको हम कहते हैं, या इनको हम स्टैग्नेंट पोस्टें कहते हैं, यानी बेसिकली ये सिर्फ एक ही ग्रेड में मौजूद हैं, कोई प्रमोशन चैनल नहीं। मैं सर गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं है बल्कि सारे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे जो कैडर्स हैं वो मौजूद हैं। उसके लिए सर गवर्नमेंट ने जो इसका हल निकाला हुआ है वो टाइम स्केल प्रमोशन है। टाइम स्केल प्रमोशन हर 10 साल बाद जो है उसकी नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होती है, और वो इसमें साइकोलॉजिस्ट हमारे स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनको हम टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो दे रहे हैं एज पर पॉलिसी। साइकेट्रिस्ट या साइक को नहीं दे रहे? नहीं सर, सबको मिल रही है, जितने भी हमारे कैडर जो आइसोलेटेड हैं जिनका प्रमोशन दूसरी तरह स्ट्रक्चर रेगुलर प्रमोशन के लिए मौजूद नहीं है, उन सब को हम टाइम स्केल प्रमोशन दे रहे हैं। मैडम, हम एक हमारी तरफ से, आपके कॉकस की तरफ से एक गवर्नमेंट को ये जानी चाहिए एडवाइस भी कि इनके जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो डेवलप होना चाहिए। हम इनकरेज करना चाहिए हमें ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं रिगार्डिंग रिलेटिंग टू ये थेरेपीज और इन बच्चों को अपना टाइम दे रहे हैं, तो अगर वो इस हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं तो उनका प्रॉपर प्रमोशन क्राइटेरिया होना चाहिए। सर ग्रेड 19 तक वो जा सकते हैं एज पर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर टाइम स्केल प्रमोशन। लेकिन 19 तक कोई गया है सर? अभी तक उनमें से किसी का भी क्राइटेरिया जो है 20 साल सर्विस का पूरा नहीं हुआ। ठीक है सर, जो होगा क्राइटेरिया बन जाए, जिसका सर होगा, अगर आपकी तरफ से एक सिफारिश चली जाए, सिफारिशात जो हम मतलब कर रहे हैं, तो वो चली जाए तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ सारी, ये ब्लड के रिलेटेड हैं, ऐसे ही है, जेनेटिक है, ब्लड डिसऑर्डर है। सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है जेनेटिक है, बट इसके पीछे रीज़न फैक्टर जो है, तो ये बेसिक जी सर, ये कज़न मैरिजेस से जो है नॉर्मली हमारे जो देखा गया है, ख़ासतौर पे हमारे पास जो डेफ बच्चे हैं उनमें सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर कज़न मैरिजेस की वजह से। तो मैडम, ये कॉकस का इधर जो मकसद है वो यही है कि हम अच्छी कुछ सिफारिशात गवर्नमेंट को दें कि जिसके ऊपर वो कोई कानून साजी करें। अगर इसके ऊपर कोई हम कोई स्पेसिफिकली कज़न मैरिजेस के ऊपर और बाकी डिसऑर्डर्स के ऊपर हम कोई
बिल इनिशिएट करें तो वो भी अच्छा है। एक हेमोफेलिया एंड थैलेसीमिया के ऊपर एक हम बिल लेके आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर डे पे, तो इसके ऊपर भी हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल हैदर, आई हैव बीन कलेक्टिंग ऑल द डेटा सो फार बिकॉज इट्स जस्ट द सेकंड मीटिंग और हमने ये फर्स्ट टाइम ही डिपार्टमेंट्स को बुलाया है, सो वी वुड वांटेड टू नो कि एक्चुअली डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है। स्कूल जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग है, जो थेरेपीज करवानी है, जो NGOs हैं, हाउ दे आर इंक्लूडेड इन दिस। सो आई थिंक आई हैव गॉट अ रफ आइडिया टुडे एंड हाउ वी आर मेकिंग द मिनट्स ऑल्सो। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको भी लेके सबको लेके तो हम विल प्रमोशन क्राइटेरिया वाला मैडम वो मैंने वो बिल्कुल लिख दिया है प्रमोशन क्राइटेरिया वाला। Thank you. जी Thank you, ma'am, for your permission. Ma'am, I'd like to request that along with the ABA therapies, we should also consider the neuroaffirmative therapies as well. We should not put all our eggs in one basket. It is one therapy which is very important, very helpful all across the world, but there are other therapies as well which are more neuroaffirmative, different approaches that relate to the differentiated learning as well. ठीक है, because not all kids have different needs. Exactly क्या करती they can be like Waldorf system if you go into education. They can be like adaptation of a Montessori system, sir, if you say so. And ABA has its own plus, but there are other like Teach, PAX, Aston. Ma'am can bail me out on that. There is so much to be done. We all need to have a training need assessment first and foremost. ठीक है, including the staff that are dealing with the kids, not only the teachers, and what content they are gonna relay. And repetitive trainings. It's an ongoing process. It's not one-time treatment. There's hell of a difference between a physical ailment, like you can provide the prosthetic, you can provide the glasses, you can give some artificial limb or thing like that, and it will be solved. Or you might be even giving a wheelchair and making an elevator over there, or getting the ramp in the right way. But wherein comes the intellectual differences, neurodiversity, over there it's ongoing. There's no quick fix to it. There has to be a treatment plan, a goal and objective and a prognosis. That has to be regularly followed and kept a tab on. जिसका record हो हमारे पास कि किसने कितना improve किया, whether they are gonna need the same treatment again or will have to diversify. Like somebody may be self-injuring behavior किसी का होगा. Somebody would be aggressive. All are gonna have their own individual treatment plans. One size will not fit all. There is no cookie cutter to it. So this is exactly I will endorse जो आपका टीच और पैक्स है, that is actually derived from ABA, sir. इसके अलावा कोई approaches हैं तो definitely would do for that. Yeah. Teach and PACS both are derived from ABA. But it's not academic discussion, so different approaches. What my point was, we don't have many teach certified trainers over here. Unfortunately, क्योंकि PACS भी जो है ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, टीच के लिए भी, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। The ways, how do we do this? अगर जिस तरह की ट्रेनिंग, I mean, ठीक है, I'm not a therapist here. There's a limitation that I can understand your terms, but वो हम किस तरह कर सकते हैं? हम कोई इस तरह एक पायलट प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट कर सकते हैं? Sorry, मैं सर, कोई पायलट प्रोजेक्ट हम किसी एक यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं? I mean, we can. I mean, indeed, ma'am, we can explore the options. Initiatives. I think that's not a problem. At least we can have the direction right. जितना हम जल्दी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, एक तो सर को इंडोर्स करूँगी स्ट्रांगली, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ आल्सो फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज डिफरेंट, जिसमें टीच, सर्ट्स, आपका जो फ्लोर टाइम है या प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, और इसी तरह से ABA, ये सारी जो हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वही आप कर सकते हैं. वन साइज़ नॉट फिट ऑल, ये बिल्कुल ठीक है. और इसके लिए यही हो सकता है कि जो इन थेरेपीज़ में एक्सपर्ट हैं उनको इंगेज किया जाए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी जाए. जैसे सर्ट्स की जिसके पास स्पेशलिटी या एक्सपर्टीज़ है उनको आप इंगेज करें. टीच, ABA में जिसकी एक्सपर्टीज़ हैं उनको आप ऑन बोर्ड लें और उनसे आप डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स जो है अपने टीचर्स की करवा दें. डॉक्टर साहब, लेकिन हम ये किसी यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं, लिंक विद द यूनिवर्सिटी, एंड देन वी कैन टेक ऑल दीज थेरेपीज इनटू वन अम्ब्रेला, और जिस तरह आपने भी बताया कि वहीं पे जाके हम ये टीचर्स ट्रेनिंग दे सकते हैं. मैम, वी हैव अ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड में है, इनकी चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी है. उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. हमारे
even हमारे health and population में we've got 2 academies. We can lend our space if they need that. Great. और certainly मैम कि अगर resources pool किए जाएं और resources थोड़े से invest special education में किए जाएं, अच्छा जी, जैसे psychologists इनके stuck हैं, further ये अगर कोई resource persons hire कर सकें, coordinate कर सकें, contracts कर सकें उनके, ताकि इनके पास पेशेंट टू थेरेपिस्ट रेशो बहुत ख़तरनाक है। वो मैंने पहले जिक्र किया था कि 180 अगर बंदा है तो 22,000 बच्चा है जिसको डील करना है, एंड दे ऑल नीड इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वी कैन टेक अ पायलट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, वहाँ से हम ये शुरू कर सकते हैं। मे बी वी डोंट नीड so many those institutions. Maybe we can start from one and let's see how it works. Like I said, I'm not a therapist, so आप लोग बेहतर जानते हैं being an experts, तो हम वहाँ से चीज़ों को लेके जा सकते हैं। And let me connect with you again on this, और फिर मैं भी बात भी कर लेती हूँ और हम इस कॉकस के थ्रू चीज़ों को आके लेके जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि सारा बेनिफिशियल हो ये मीटिंग, सिर्फ मिनट्स ना मिले और इस कॉकस का एक्शन, लेट्स जस्ट पुट सम एक्शन। मेरी एक सबमिशन है मैम। जी सर, प्लीज बताइए। इस कॉकस के लिए कि फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक बोर्ड बना देना चाहिए कॉकस के अंदर से, जिसका जो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं उनको सुपरवाइज करे। सर इसी बात पे मैं आपको कह दूं जी, वो वर्किंग काउंसिल थी जो हम इस एजेंडा पे फिर से बात नहीं कर पाए, बातें हमारी बहुत होती हैं, टाइम बहुत कम है। वो एक्चुअली वर्किंग काउंसिल बन गई है, तो मैं चाह रही थी आज सेक्रेटरी साहब अनाउंस कर दे, बट ही वाज अ लिटिल बिजी, और उन्होंने साथ ही वो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हमें चाहिए फॉर द असेंबली, वो भी बात आज नहीं हो सकी, बट श्योर हम बाय नेक्स्ट मीटिंग इट्स गोइंग टू बी एंडोर्स्ड एंड वी विल बी टेकिंग इट अप। तो ये एक्चुअली वर्किंग काउंसिल बन गई है, वी आर गोइंग टू take everything through this working council. My recommendation, being the president of Down Syndrome Association, जी, ओन साहब को हमें हर जगह, मैंने इनके साथ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अर्सा काम किया है, हमने डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस में इंटरनेशनल सेमिनार किया था। I remember the seminar, sir. तो आप भी उसमें थी, तो इसमें हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको इसमें इन्वॉल्व करें और इनसे बहुत सारी गाइडेंस हमें मिल जाए। इन्होंने जैसे वहाँ पे रहते हुए ऑटिज्म के ऊपर, मुझे आज तक याद है आपका वो पेपर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बहुत जरूरी। Father's involvement, जी, to socio-cultural preoccupation and things like that, but they need to be on board too. जी, थैंक यू। अच्छा अहमद, आप भी आए हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? Thank you, Honorable Chair. एक तो I would like to commend and congratulate you for taking the initiative for setting up this very important caucus in the Punjab Assembly. Thank you. And coming from a rural constituency, I can feel the pain and the gap in terms of providing adequate education and facilities and services to children with different abilities and their families and parents. At times it gets very difficult for families living in far-flung areas, especially in villages, to even get access to any such facility, or to even उनके पास शायद ये इंफॉर्मेशन नॉलेज भी नहीं होती होगी कि कोई स्पेशल एजुकेशन स्कूल है। और जो वहाँ के इश्यूज़ हैं वो एक और फिर रूप और डायमेंशन इख्तियार कर लेते हैं, बिकॉज सच चिल्ड्रन मे not get the kind of empathy and support from the society or the community, and they get shunned and they get sort of rejected, which obviously has another उसकी फिर जो उनकी personality development पे और जो negative impacts होते हैं। But obviously I am learning, मेरा experience उस हद तक limited है कि जो मैं अपने हल्के में देखता हूँ। When I was listening to what you were saying, so what was coming in my mind, if you could help us just understand, maybe in the next meeting,
कि how have other countries organized this particular stream of education, और स्पेशली लोकल लेवल पर रूरल एरियाज़ में हम ऐसी बेयर मिनिमम सपोर्ट क्या दे सकते हैं? कोई सोशल वर्कर्स की मौजूदगी हेल्प कर सकती है, या आप यूनियन काउंसिल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, या आप एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स में कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे एम्बेड हो जाए? बट दुनिया में क्या क्या चल रहा है? आई थिंक आई वुड लाइक टू नो दैट बिकॉज आई एम कम्प्लीटली in the dark about this subject. Maybe one or two examples from the West as benchmarks, one or two examples from Commonwealth or similar countries, maybe कोई Indian states होंगी जो इसमें अच्छा काम कर रही होंगी, तो वो एक अच्छा हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमने कहाँ पर जाना है, और बाकी दुनिया इस इशू को कैसे अप्रोच कर रही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कि जहाँ हम इतना सब कुछ कर रहे हैं वहाँ इन तमाम स्कूल्स में स्पोर्ट्स टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इनकी क्योंकि एग्रेशन को कंट्रोल करता है स्पोर्ट्स. तो वो जब यही बच्चे ज़्यादा फटीग्ड हो जाएंगे इसी में खेलने में, और इनकी एक्टिविटी और इनकी थोड़ी वो उसमें रहेगी, तो ओबियसली इसको भी प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए कि स्पोर्ट्स टीचर हर स्कूल में हर लेवल पे ज़रूर होना चाहिए जो इन बच्चों को एक्टिविटी. और स्पोर्ट्स टीचर का बिहेवियर हमेशा पोलाइट होता है रादर देन दूसरे लोगों से, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में उन लोगों को इस तरह से डील कर लेता है, इस तरह से इंगेज कर देता है कि बच्चे के पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो कुछ और भी सोचे या करे. तो भी ज़रा देखने की ज़रूरत है. जी मैडम, से जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, इफ़ वी हैव दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन. जी मैडम, हमारे हर स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और इंस्ट्रक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, और ये उन बच्चों के साथ काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि डिफरेंट जगह पे जाके हमारे बच्चे परफॉर्म भी करते हैं और वहाँ पे विन भी करते हैं. तो ये जो है एक्टिविटी, जी सर, ये एक्टिविटी जो है ये मैडम हर स्कूल में हमारी होती है स्पोर्ट्स की जो है. अच्छा जी, ओके, ठीक है, सही. तो फिर आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई टू conclude today's very active and productive meeting, I thank you all for your keen interest and very active participation. Thank you so much. Thank you. मेरा काम ये सारे आसान कर